Okay. Good morning, students. Today, class 9th, chapter 9, force and law of motion. The first video is there. The video of class 9 physics is continued. It will be done. Students, you can check your, if you subscribe, the information will come to your mobile. I think you should check it regularly. Okay. The first video about the force and law of motion. As you know that force, what is force in your previous classes. Once again I am going to repeat. Force. It is external pull or push which can change the position of a body or try to change. Force, mainly two types, balanced force and unbalanced force. Balanced force means when two or more forces applied on a body such way that the resultant force is zero or net force is zero. The definition I have written already. When two or more forces applied on a body such way that their net force is zero, you can tell algebraic sum is zero. The algebraic sum of forces are zero. I mean F1 plus F2 plus F3 plus F4 is equal to zero. Maybe forward and backward. If backward is there, suppose that F1, F2, F3 is forward force. 2 Newton, 3 Newton, 5 Newton. 2 plus 3 plus 5, 10 Newton. And F4 and F5, 5 Newtons. Backward forces. 10 plus 10 Newton, backward force will be written as minus 10. So the sum of the algebraic sum of the forces will be plus 10 Newton minus 10 Newton is equal to 0. That's why I have written when two or more forces applied on a body such way that the resultant force is 0, then the forces are called balanced force. Same, the unbalanced forces definition is there, that when two or more forces applied on a body such that the net force is not 0. If net force is 0, then the forces are called balanced. If net force is not 0, then the forces are called unbalanced force. Okay. The once again listen in Hindi. यदि किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, 2 या 2 से अधिक लग रहा है, तो वो फोर्स से बैलेंस कब होगी? सब उसका एल्जेब्रिक सम 0 होगा. यानी कहने का मतलब कि दो सभी फोर्सेस को यदि जोड़ते हैं और 0 आता है रिजल्ट, तो उसको हम बैलेंस कहेंगे. 0 कब आएगा? जब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होगा. और कभी निगेटिव पॉजिटिव में कोई अधिक कम हो जाएगा तब तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा. निगेटिव डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में अधिक फोर्स लग जाएगा, और पॉजिटिव यदि बड़ा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अधिक लग जाएगा. तो उसमें वो नेट फोर्स कुछ न कुछ जरूर होगा, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में. यदि बच जा रहा है कुछ न कुछ फोर्स, तो उसको क्या कहेंगे आप? यदि 0 नहीं है तो क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स. यदि 0 हो जा रहा है दोनों फोर्सेस का सम, तो वो ये बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा. 2 or more forces applied on a body such way that the net force is not 0, then the forces are called balanced force. 2 or more forces applied on a body such way that the net force is 0, then the forces are called balanced force. Very easy to learn. Okay, students. Now you see the Newton's first law of motion. न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? Listen attentively. When a body is either in motion or in static position, it will remain in its original position until external force is applied. यदि कोई बॉडी मोशन में है या रुका है, तो ये तब तक अपने पोजीशन में बना रहेगा जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी दिस डस्टर और यू कैन सी दिस बॉक्स. यू कैन सी This box is on this pad.
is in static position. It will not change its position until external force is applied. When I am apply external force, it changes its position. When I leave it, it also changes its position. The gravitational force will pull it in downward direction. First law tells us when a body is either in motion, मोशन में है, ये मोशन में है तो तब तक मोशन में रहेगा जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए. तो आप कह सकते हैं कि हमने इसको मोशन में करा दिया. सपोज ये मार्कर है, इसको मैंने मोशन में कर दिया, मोशन में कर दिया, तो ये मोशन में जाके रुक जा रहा है. लेकिन न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा और रुका है तो रुका ही रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. आपको कुछ दिख रहा होगा, जब मैं इसको मोशन में कर रहा हूं तो मोशन में जाकर ये रुक क्यों जा रहा है? इस पर एक्सटर्नल फोर्स कौन लग रहा है? ये नीचे से जो फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. तो इस पर जो है, तो इसमें यदि ऐसे मोशन में है तो रुक जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो ये नहीं रुकता. स्पेस में कोई चीज गिर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इतना कम होता है कि उसको रोक नहीं पाता और वो गिरता रहता है. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि रुका है तो रुका रहेगा, चलता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. ओके स्टूडेंट्स, एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू इनर्शिया. देखिए इनर्शिया जो है वो फर्स्ट लॉ से ही रिलेटेड है. इनर्शिया बॉडी के नेचर पर डिपेंड करता है. नेचर किसी भी बॉडी का नेचर ये है कि वो यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, और रेस्ट में है तो मोशन का अपोज करता है, मोशन में है तो रेस्ट का यानी ब्रेकिंग फोर्स का अपोज करता है. इस नेचर ऑफ बॉडी को हम इनर्शिया कहते हैं. तो इनर्शिया का डिफिनेशन वेरी सिंपल इज देयर. इट इज नेचर ऑफ ए बॉडी विच अपोजिट इट्स रेस्ट और मोशन. नेचर ऑफ द बॉडी विच अपोजिट इट्स चेंज ऑफ पोजिशन. देखिए चेंज ऑफ पोजिशन का अपोज करता है. आइदर बॉडी इज इन रेस्ट, इट्स अपोजिट इट्स मोशन. इफ बॉडी इज इन मोशन, इट अपोजिट इट्स रेस्ट पोजिशन. तो जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहना चाहेगा. यदि उसको हम चेंज करते हैं तो उसका ये अपोज करता है. अपोजिंग नेचर ही इनर्शिया है. तो हमने इनर्शिया को 3 टाइप्स लिखा है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट. एक और चीज समझ लीजिए, इनर्शिया मास बढ़ने से बढ़ती है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. तो हेवी बॉडी की इनर्शिया अधिक होगी और लाइटर बॉडी की इनर्शिया कम होगी. इनर्शिया ऑफ रेस्ट का डिफिनेशन समझिए. Inertia of rest. If a body is in rest position, it opposes its motion. And this nature of body is known as inertia of rest. Inertia of motion क्या है? If a body is in motion, it opposes its rest position. This nature of body is known as inertia of motion. देखिए मोशन में है तो रेस्ट का अपोज करेगी, तो जिस पोजीशन में है वही इनर्शिया, उसी इनर्शिया कहेंगे. रेस्ट में है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहना चाहती है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है. मोशन में रहना चाहती है तो इनर्शिया ऑफ मोशन है. तो वेरी सिंपल डिफिनेशन इज देयर दैट inertia of rest. Listen once again. If a body is in rest position, it opposes its motion. This nature of body is known as inertia of rest. And if a body is in motion position, it opposes its rest position. This nature of body is known as inertia of motion. Okay. And third one, inertia of direction is there. Inertia of direction क्या है? सुनिए. If a body is moving in a single direction, it opposes its change of direction. यदि कोई बॉडी एक डायरेक्शन में चल रही है तो उसका डायरेक्शन आप यदि चेंज करते हैं, गाड़ी यदि एक डायरेक्शन में चल रही है, गाड़ी में यदि स्टीयरिंग मोड़ते हैं तो उसका वो अपोज करती है, उसमें से आवाज आने लगती है. अचानक यदि गाड़ी है कम स्पीड में आप मोड़ेंगे तो उसके वो अपोजिंग एक साउंड उसमें से आती है ना. तो वो अपोजिंग जो नेचर है, जो चेंज ऑफ डायरेक्शन का अपोज करती है, उसको हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं.
Okay, students? I have already written the definitions at the board. You can take the snap from the board. Okay. Thank you. I think you will be understood.